Good morning, students. Yesterday we discussed about paintbrush, one of the application under accessories in Windows, and today we will discuss WordPad. Now WordPad is actually a word processor application. Word processor means where you can write your text, and you can also process your text, like if you want to change the font, you want to change of color of text, and you can also insert some figures. So WordPad is a word processor which is used to process the textual information including typing, editing, formatting and printing. Formatting means you can write A in different font. Then you can use different type of colors like red, blue, green, or it is more powerful than Notepad. I have told you there are two types of written or text you can say editor in Windows. One is WordPad and second is Notepad. But WordPad is more powerful than Notepad. Although it is not as much feature as MS Word, but you have to buy MS Word separately than Windows, and WordPad is the package that is included in Windows operating system. So you get it free of cost with Windows operating system, whereas MS Word you have to purchase separately. So here we can process the kind, and even we can check the spellings here also. Now how can we start it? Again we find it in start, then all programs, then accessories. तो यहाँ तक ये बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने पेंट लिया था, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, देन एक्सेसरीज. नाउ इन एक्सेसरीज यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक पेंट, वर्डपैड, एंड यू कैन सेलेक्ट वर्डपैड नाउ so that you can open WordPad. Now the window of WordPad has some components as we have already discussed. I have told you that almost all the window in Windows operating system have same components. So first is then again title bar where the name of the file. Next is you can say menu bar where all the options of commands available under that particular application is available. Now we have standards toolbar in another bar. Standard toolbars actually these are the actions that can be performed very frequently. मतलब जो आपको बहुत बार बार काम करना होता है तो वो सारे आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, सो डैट कि आपको बार बार मेन्यू से जाकर वहाँ तक ना पहुँचना पड़े. अदरवाइज मेन्यू में सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट वो ऑप्शंस, वो एक्शंस जो आपको बार बार परफॉर्म करनी होती हैं उनको सेलेक्ट करके आप यहाँ नीचे टूल बार्स में प्लेस कर सकते हो. तो स्टैंडर्ड टूल बार जो है कैसा है, जिसके अंदर कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस आपकी होती हैं. उसके नीचे फॉर्मेट टूल बार हम प्लेस कर देते हैं. फॉर्मेट टूल बार इज यूज्ड टू you can say change your text in an attractive manner. Format toolbar. Next is ruler. So here we have ruler. Ruler is actually your you can say scale. You can check for the length of your document. रूलर आपका दोनों तरह से हो सकता है, इधर भी या इधर भी. और रूलर बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका पेज पे जो एक्चुअली आप जब प्रिंट लेंगे तो आपका कहाँ पर प्लेस होगा, आपका इन्फॉर्मेशन जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो कहाँ पर डिस्प्ले होगा. ये जो रूलर है ये एग्जैक्ट जो आपका रूलर हम यूज़ करते हैं रियल लाइफ में मैथमेटिक्स में बिल्कुल उससे मैच करता है. तो एग्जैक्ट जो आपकी आप कहिए कि जो रीडिंग्स होती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट होती हैं, और उसी के हिसाब से हमारी इनमें सेटिंग कर सकते हैं हम अपने डेटा की, कि आप अपने डेटा को प्रिंटर्स पे, प्रिंट आउट्स पे कहाँ प्लेस कराना चाहते हो. एंड हियर इन द बॉटम वी हैव ए स्टेटस बार, एंड स्टेटस बार it display the information relative to the task in progress, and this is your work area.
तो वर्क एरिया मतलब यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। तो बेसिक ऑपरेशंस आप कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पर? आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, जैसे आपको कुछ भी लिखना है यू कैन टाइप दैट। नेक्स्ट यू कैन सिलेक्ट टेक्स्ट, आई मीन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, उसे कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बार बार आप उसको कॉपी कर सकते हो, ऊपर नीचे करना है। सपोज आपको लग रहा है नहीं ये पैराग्राफ यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये तो पहले कहीं और लिखना चाहिए था, या इसको ये बात हमें पीछे लिखनी चाहिए। कई बार होता है ना लिखते लिखते, तो हम आगे पीछे टेक्स्ट को कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं अगर सेम ही चीज़ बार बार लिखनी है तो। देन वी कैन अप्लाई स्टाइल्स, तो आप उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया आप डिफरेंट तरीके से उसका फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो, अलग अलग तरह के लिखने के स्टाइल यूज़ कर सकते हो, उसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, उसके कलर चेंज कर सकते हो। तो फोर्थ यू कैन अप्लाई कलर, तो फ़ॉन्ट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, और आप इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हो, सो डैट कि यू कैन सी योर फाइल इफ़ यू वांट ऑन ए लेटर स्टेज। अगर आपको बाद में कभी अपनी फाइल को देखना है, चेक करना है, तो आपको वहाँ सेव्ड मिलेगी, आप उसको तब प्रिंट आउट ले सकते हो, उसमें कुछ और चेंज करना उस वक्त वो भी किया जा सकता है। तो ये एक्चुअली एक तरह से वर्ड पैड जो है ये आपकी नॉर्मल ज़रूरतों को पूरा करता है। आई मीन इट हैज़ लिमिटेड ऑप्शंस फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, बट स्टिल you can use it for entering your notes or for your typing purpose. Next is calculator. Calculator, it's just like your normal calculator जो हम अपने रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, तो ये वो है। तो कैलकुलेटर इज़ एक्चुअली कंप्लीट कैलकुलेशन सॉल्यूशन, और ये दोनों तरह के कैलकुलेटर इसके अंदर होते हैं, योर नॉर्मल कैलकुलेटर एंड योर साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो नॉर्मल भी करता है आप, और इसका चेंज कर सकते हो साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने के लिए भी। सो कैलकुलेटर विंडो डिस्प्ले जो होती है डैट इज़ जस्ट लाइक योर नॉर्मल लाइफ कैलकुलेटर। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इज टाइटल बार वेयर कैलकुलेटर लिखा होगा, देन यू हैव वेयर मिनिमाइज एंड यू मैक्सिमाइज एंड cross button, and here you have a menu bar, edit, view and help. Here we have very limited option because we have to perform calculation by selecting different digits, and all digits are here like your normal calculator, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 like, and then we have certain operations key like division, multiplication, plus, minus, equal and your square root, some basic operations here, and then we have some other MR, MS. Actually these are memory. I mean we can store last 1-2 values in calculator but not more than that, because calculator's function is just to calculate the data. तो आप यहाँ पर अपनी digits को select करके you can enter the number, because here we have in number bar, so we have a rectangle blank space on which we can display all the numbers. So whenever you select any number, like we select 5 and 6, it displayed here. Then we select multiplication, it's display multi. Then suppose we select 4, and then we can select equal to get our result, and result is also displayed in this area. So it is also available in accessories. So the path to use the calculator is select all program, then accessories, and then select calculator. So I have already told you that we have two types of calculators like standard and scientific. So यहाँ भी आपके पास दोनों options available है, आप वो select कर सकते हैं from the view, edit, view and help, and from view you can select whether you want to standard or you
want to perform scientific calculation, तो वही आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशंस आपकी परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट इज नोटपैड। So notepad is very much similar to wordpad, but it has very less features than notepad. Notepad is used to enter the plain text. Like किसी लैंग्वेज के अंदर आपको प्रोग्राम बनाना है, that language don't have its own editor, you can use notepad. तो HTML के मोस्टली हम जितने प्रोग्राम्स लिखते हैं वी राइट दैम इन नोटपैड। तो नोटपैड में किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोग्राम लिखा जा सकता है, प्रोवाइडेड यू यूज़ द एक्सटेंशन फॉर दैट पर्टिकुलर। लाइक अगर आपको C का लिखना है तो .c लिखना पड़ेगा, HTML का लिखना है तो HTML आपको लिखना पड़ेगा। सो नोटपैड इज एक्चुअली स्मॉल टेक्स्ट एडिटर। For reading and writing short length text file, imagine it is used to enter the text file. You can use notepad to create or edit text file that don't require formatting, no formatting. So notepad is just for entering the text. We cannot change the size, font, or you can say color. It is also available in accessories, and the path for notepad is start, all program, accessories, and then you have to select notepad from there. So notepad is used in case we want to enter some programming languages program. अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है किसी लैंग्वेज के लिए और आपको पास एडिटर नहीं है, तो आप फिर इसको नोटपैड में उस प्रोग्राम को लिख के उसे वही एक्सटेंशन देके जो प्रोग्राम है वही एक्सटेंशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, और उस एक्सटेंशन के साथ जब आप दोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी लैंग्वेज का प्रोग्राम बन जाएगा और आप उस लैंग्वेज में उस एनवायरनमेंट में जाके उसको रन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है एंटरटेनमेंट टूल। एंटरटेनमेंट टूल्स में वी हैव डिफरेंट लाइक साउंड रिकॉर्डर। साउंड रिकॉर्डर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड, प्ले एंड एडिट साउंड फाइल। ओके, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज साउंड रिकॉर्डर, ओनली साउंड फाइल। तो आप साउंड रिकॉर्डर के अंदर आप चाहो तो अपनी वॉइस खुद की भी रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई गाना रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड देन यू कैन प्ले इट, एंड वी कैन ऑल्सो स्टोर आवर साउंड्स इन साउंड रिकॉर्डर। मतलब साउंड रिकॉर्डर में जो आपने रिकॉर्ड किया है आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, आप उसको कभी भी फिर प्ले कर सकते हो। सो हाउ टू स्टार्ट, अगेन इट इज़ अवेलेबल इन स्टार्ट, देन ऑल प्रोग्राम, again then in accessories, and then entertainment, and you have to select sound recorder. You will find a sound recorder like this, sound recorder. Then menu bar, we have some options under this like file, edit, effects and help. Here it shows your playing of music, and we have some buttons like backward button, fast backward button, fast forward button, then play button, then stop button, and then one more button for recording purpose. So you can play any type of sound here by clicking this, and you see all these buttons resembles with our real life record players, or you can say your music players. आपने देखा होगा म्यूज़िक प्लेयर्स के अंदर भी हम लोग मोस्टली ट्रायंगल ही यूज़ करते हैं, स्टॉप करने के लिए यही बटन होता है, रिकॉर्ड करने के लिए हमारा सर्कल ही होता है। तो फास्ट फॉरवर्ड सब बटन्स वही यूज़ किए गए सो डैट कि रिजेंबल रहे, मतलब आपका वही
रियल लाइफ के साथ हम जितना ज़्यादा रिजेंबल करेंगे उतना ही आपके लिए ऑपरेट करना इजी रहता है। तो आपको कोई अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा कि इसके लिए कौन से सिंबल्स हैं, वही सिंबल्स हैं जो रियल लाइफ में यूज़ होते हैं। तो चाहे आप VCR यूज़ कर रहे हो, DVD यूज़ कर रहे हो, आप देखिए आप कोई भी किसी भी तरह का म्यूज़िक सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो उन सब में प्ले, स्टॉप एंड रिकॉर्ड के लिए यही बटन्स होते हैं। तो वही बटन्स यहाँ पर है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू रिकॉर्ड योर साउंड यू हैव टू click on record button, and when you finished your recording then you have to click on stop button, and after that by selecting the file you can play it as number of time as you want or any time, because it stores the file in computer। तो जो भी आप रिकॉर्ड करते हैं वो आपका जो है कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो जब प्ले करना है तो यू कैन चूज़ particular file from the file option, and from there you can select the file and then can play the file. Here we also have next thing is volume control. We can control the volume of computers or your music system. Whenever we this volume control is also available under the entertainment, like start, all program, and then accessories, and then entertainment, and now you can select volume control. This volume control, a pop-up window will appear whenever you select it, and this pop-up window will show you different parameters to control your volume, or you can say you can control your volume for different type of applications like window applications, and then you can say some other like WAV files, live line volume, etc. So CD player. So we can change music for all the application differently, and here we have vertical lines in each of this, and we have a selector. So by moving, you can move this selector up and down, and by moving this selector up and down you can change the volume. I mean, the higher you place it, the more the volume. And then you have one more button here, mute. This is a toggle button. Whenever you check it, it becomes mute. When you again click it, it became deselected, and your volume will restore to the selected value. तो जहाँ आपने पहले उसको सेलेक्ट किया था वहीं पर वो वॉइस आपका रिस्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सब में सबके अपने अपने सेलेक्टर बटन हैं, और उनको ऊपर नीचे करके आप हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सेट कर सकते हो। Next is system tools. Actually, these systems are used to enhance the working of the computer with different tools. They not only speed up the computer, but they can also useful for the cleaning of your कंप्यूटर सिस्टम। आई मीन आपके कंप्यूटर के अंदर जो अनवांटेड फाइल्स आ गई हैं उनको क्लीन करने के लिए, या फिर आप कुछ पर्टिकुलर कुछ चीज़ सेट करना चाहते हो तो आप वहाँ पर वो सेट कर सकते हो। एंड हियर वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल tools, like one is character map. Character map, actually whenever you select it you get a pop-up window with different type of characters under this. I mean आपके कीबोर्ड के ऊपर जो कैरेक्टर्स हैं वो तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, बट उससे अलग बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कीबोर्ड के ऊपर नहीं होते, एंड वी नीड देम सम टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक यू वांट this type of symbol, or you can use some, you can say like you want to use the symbols on the card, or you want sigma or pi, or you can have the various symbols which are on the playing cards like this, and you can say one is like this.
सो इस तरह से जो अलग अलग तरह के सिम्बल्स हैं, इवन समटाइम वी कैन फाइंड द हिंदी टेक्स्ट, आई मीन हिंदी के जो हमारे हैं क ख ग वो भी सिम्बल्स इसके अंदर हमें मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग तरह के जो सिम्बल्स हैं जो नॉर्मली कीबोर्ड्स पे अवेलेबल नहीं होते, बिकॉज कीबोर्ड की भी अपनी एक लिमिट है कि कितना सिंबल आप उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वो सारे सिम्बल्स जो हैं ज़्यादातर उसमें से आपको करैक्टर मैप के अंदर मिल जाते हैं, एंड आप उनको सिलेक्ट करके आप उनको यूज़ कर सकते हो। So this option helps you to view or insert special character into document। तो आप कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने ओपन किया, सपोज वर्ड पैड के अंदर है या आप MS वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ करेक्टर मैप से आप चाहो तो वो करेक्टर्स लेके वहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क क्लीनअप। दिस क्लीनअप क्यों यूज़ करते हैं? एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स लॉट्स ऑफ टेम्परेरी फाइल्स एंड कैशे फाइल। क्या होता है कि आप फाइल यूज़ करते हो एंड उनकी टेम्परेरी फाइल्स बन जाती हैं, और वो फिर टेम्परेरी फाइल्स ऐसे ही पड़े जो है आपकी मेमोरीज़ का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो वो यूज़ करना शुरू कर देती हैं, जबकि वो उनका कोई यूज़ नहीं होता है। वो जब उनको बनाया गया था बस थोड़े टाइम के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है और उसके बाद बस वो ऐसे ही पड़ी रह जाती हैं। तो डिस्क क्लीनअप जो है वो आपको ये हेल्प करते हैं। एंड दीज टेम्परेरी फाइल्स मोस्टली क्रिएटेड विद द एक्सटेंशन ऑफ .tmp। तो पता चल जाता है कि टेम्परेरी फाइल्स है। तो क्लीनअप जो है आपकी, या फिर कैशे फाइल, जैसे आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो क्या होता है कि उस वेबसाइट से रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं वो उसको अपने स्टोर कर लेता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप उस वेबसाइट को ओपन करते हो तो वो फटाफट तेज़ी से ओपन हो सके। और अगर आपको नहीं ओपन करनी है तो वो अननेसेसरली आपकी मेमोरीज में पड़ी रह जाती हैं। तो आप उन फाइल्स को जो है अपने रिमूव कर सकते हो, आप उनको डिलीट कर सकते हो, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डिस्क क्लीनअप। तो इट इज़ यूज टू स्पीड अप द परफॉर्मेंस। क्या होता है कि अगर आपके पास मेमोरी ज़्यादा होगी तो आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। So when you run the disk cleanup, it checks for file that can be safely deleted and then present a list of such files। तो आप जब डिस्क क्लीनअप रन करते हो तो ये अपने हिसाब से देख लेते हैं कौन कौन सी फाइल्स हैं, जैसे कोई टेम्परेरी फाइल है या कोई बैकअप फाइल है, तो उन सब फाइल्स की लिस्ट बना के आपको दे देते हैं और आपसे पूछ लेता है देन इफ़ यू वांट टू डिलीट देम यू कैन डिलीट। आई मीन ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं करता, इट जस्ट प्रेजेंट यू द लिस्ट ऑफ द फाइल्स दैट इट फाइंड अननेसेसरली stored on your disk। Next is scheduled tasks। Here you can schedule your task, like if you want to enter the birthday of your some friend, आपको लगता है कि मैं भूल ना जाऊँ कोई पर्टिकुलर इवेंट या कुछ ऐसा है जो मुझे रिमाइंड करा दे, तो यू कैन enter that task or that thing information into your calendar। like आप डेली बेस पे, मंथली, या आपको किसी सर्टेन टाइम पे रोज़ आपको लगता है मुझे इतने बजे ये काम करना होता है, तो वो उस टाइम के हिसाब से सेट कर सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर डे पे सेट कर सकते हो, किसी ईयर पे सेट कर सकते हो। एंड ये है आप इस तरह से शेड्यूल जो अपना बताओगे तो आपके शेड्यूल के साथ आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जब भी वो पर्टिकुलर टाइम पे आप बताओगे कि वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए या मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। तो आप यहाँ कस्टमाइज़ भी कर सकते हो कि वो शेड्यूल जो आपने टास्क जो सेट किया है, यू कैन असाइन ए टास्क ऑन एनी डे और टाइम इन योर कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल टास्क। तो आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे या जिस पे भी उसको किया है, और वो आप ये भी समझा सकते हो कि सपोज यू वॉन्ट set a meeting at 10 AM on 15th। ठीक है, तो it can you can also set like inform me at 9:45 AM कि 15 मिनट पहले मुझे पता चल जाए ताकि मैं उस टाइम पे उस मीटिंग में पहुंच सकूं या जो भी है। तो आप इस तरह से भी अपना शेड्यूल सेट कर सकते हो कि आपको इन्फॉर्मेशन कितने बजे मिलनी चाहिए, और आप इस शेड्यूल को टर्न ऑफ कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। लाइक अगर आपकी मीटिंग पोस्टपोन हो गई 11 o'clock के लिए या फिर फॉर सम अदर डे, सो यू कैन चेंज इट हियर।
सो आप नया टास्क अगर शेड्यूल करना है तो आपको सिर्फ शेड्यूल टास्क एंटर करना है एंड देन डबल क्लिक एंड ऐड शेड्यूल टास्क। आप डबल क्लिक करेंगे, शेड्यूल टास्क आपका ओपन हो जाएगा एंड देन यू कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू विजार्ड। So these are some of the applications under accessories, and these applications are very useful to do some task. Now next thing is control panel. So ये जो आपने different अपने एक्सेसरीज के अंदर किया है, पेंट ब्रश है, वर्ड पैड है, नोट पैड है, कैलकुलेटर है, आप इनको एक बार ट्राई करके देखिए एंड आपको ये इजीली समझ में आ जाएंगे और आप इजीली इन सबको यूज़ कर सकते हो। Next topic is about control panel. Control panel is very important part of Windows operating system because it allows you to control various hardware and software of your computer. तो कंट्रोल पैनल वो है जिसके थ्रू आप अपने हार्डवेयर या आपके जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। And it is a group of icons which can be selected to invoke the application for which they are designed. तो control panel के अंदर you have number of different icons and you can select the icon and you can perform the desired action. So how can you access control panel? Control panel is available under the start button. होता है जब हम start button click करते हैं we get two side by side menu. Can say drop down menu. Here we have control panel in this second. So by clicking on control panel here, a pop-up window will generate. A window will displayed on your screen and this window has all the options or all the actions that can be performed to control various hardware and software on your computer. So some commonly used are like your mouse, then network, then printer. There are lots of applications. I am talking about only some useful or you can say generally used. Okay? All are useful but I am telling you about which are frequently used. Then your screen, internet option, network, then your mouse, printer, and then sound and audio control, and one more is system. It's one of very important application of control panel. So we have different, and one is add new hardware and software so add new hardware, actually it allow you to add the new hardware. आजकल तो अभी अब बहुत कम ये यूज़ करना पड़ता है बिकॉज वी हैव प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। प्लग एंड प्ले के अंदर क्या होता है, आपने जस्ट इंसर्ट किया और उसका ड्राइवर जो है ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी आपके जो डिवाइसेस आ रहे हैं उनके अंदर छोटा मेमोरी कार्ड है या मेमोरी है तो वो उनके ड्राइवर्स जो हैं दे ऑटोमेटिकली लोडेड इन द कंप्यूटर, ज़्यादातर ही हो जाता है। तो आपको ऐसे स्पेशली उन किसी हार्डवेयर को इंसर्ट नहीं करना पड़ता, पर पहले तो ऑलमोस्ट हर हार्डवेयर को आपको ऐड करना पड़ता था। अभी भी कुछ हार्डवेयर के लिए आपको कोई नया हार्डवेयर है उसको ऐड करना पड़ सकता है। तो सपोज़ आप कोई नया प्रिंटर अटैच करना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर टाइप का माउस कोई अटैच करना चाहते हो तो यू हैव टू क्लिक हियर ऐड हार्डवेयर, न्यू हार्डवेयर। सो दिस हैज़ टू बी परफॉर्म्ड वन टाइम। एक बार आपने परफॉर्म कर दिया तो फिर वो फॉर एवर, फिर उसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई नया हार्डवेयर लगाते हो तो आपको एक बार करना पड़ता है। So it guides you whenever you click on add hardware option, you will get a wizard, and this wizard guides you through the process of adding new hardware to your system. Wizard मतलब आपके पास विंडो एक ओपन हो जाती है, that window has options and by clicking the options you can perform your task. तो यहाँ पर ऑप्शंस आती रहती हैं, आप ऑप्शंस को अपने
रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सिलेक्ट करते रहते हैं और आगे से आगे नई नई ऑप्शंस आपसे पूछी जाती हैं और आपका हार्डवेयर जो है वो अटैच हो जाते हैं। तो मैंने आपको यही बताया कि या तो हमारा हार्डवेयर प्लग एंड प्ले टाइप है, उसमें तो हमारा क्या होता है कि जैसे ही हम उसको इंसर्ट करते हैं वो उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत होता है तो कुछ केसेस में हमें अपने सिस्टम को हो सकता है टर्न ऑफ करना पड़े और जब आप उसको टर्न ऑन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो है आप लोकेट कर लेता है विंडोज़ को और वो उसका सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होके वो काम शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ के लिए जिनके लिए प्लग एंड प्ले डिवाइसेस नहीं हैं, देन यू हैव टू यूज़ ऐड न्यू हार्डवेयर। तो यहाँ पर ऐड न्यू हार्डवेयर में आपका विजार्ड आएगा और इसमें आपको ऐड क्लिक बटन जो है वो आपको बार बार क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट, कैंसल, इस तरह की ऑप्शन आती है मोस्टली हर एक के साथ, नेक्स्ट, बैक और कैंसल। तो अगर आपको लगता है कि कुछ पीछे मुझे कुछ और सेटिंग करनी थी तो यू कैन गो बैकवर्ड आल्सो एंड इफ़ यू थिंक कि हाँ मेरी सेटिंग पिछली ठीक है तो यू कैन चूज़ द नेक्स्ट बटन so that next option can be asked from you. And if you want to cancel your addition of hardware at any time you can click add cancel button. So wizard की हेल्प से आप अपने किसी भी नए हार्डवेयर को अपने सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हो। ओके, सो ये आज के लिए कुछ ही ऑप्शंस हैं इसकी। नेक्स्ट ऑप्शन जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी कंट्रोल पैनल की। थैंक यू स्टूडेंट्स।